वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम TYBA इकोनॉमिक्स का G3 का पेपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्लानिंग इसका फर्स्ट लेसन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लेसन का नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। फर्स्ट लेसन जो है उसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। उसमें अभी हम वन बाय वन देखेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट is the increase in the standard of living in a nation's population with sustained growth from a simple low income economy to modern high income economy. इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का बढ़ना विद द सस्टेन ग्रोथ फ्रॉम अ सिंपल लो इनकम इकोनॉमी टू मॉडर्न। लो इनकम से हाई इनकम जाना, लो इनकम से हाई इनकम में जाना, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का प्रॉब्लम है। जो एक इकोनॉमिस्ट है मेडिसन makes the distinction between two terms when he writes the rising of income levels in generally called economic growth in rich countries and in the poor countries it is called economic development। इनकम का बढ़ना जो है रिच कंट्रीज में इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये चीज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाती है। Now, indicators of economic development. Economic development is measured in a four ways. First, economic development is a measure in a four ways. First जो है वो है GNP. One of the method to indicate economic development is the economy's real national income over a long period of a time. Real national income refers to the country's total output of final goods and services in real terms, rather than in the rather than in a money terms. Thus, price changes will have to be ruled out, but this is inevitable. The phrase over a long period of a time implies sustained rise in a national income, which occurs during the upswing of the business cycle, does not constitute economic development. This indicator fails to take into consideration changes in the growth of population. If a rise in a real national income is accompanied by a faster growth in a population, there will be no economic growth but retardation. But this is not satisfactory definition. There are certain difficulties in the measure of national income which are discussed as under. There is the difficulty in defining nation in national income. There is a difficulty in defining nation in a national income. Every nation has its own political boundaries, but national income includes income by nationals in a foreign country. National income is always measured in a money, but there are number of goods and services which are difficult to assess in a monetary terms. For example, painting as a hobby, bringing up for children by mother, owner's marriage with secretary. By excluding all such services from national income results undervaluation of national income. Income earned through illegal activities is not included in national income. Such goods and services do have value to meet the needs of consumers. By leaving them out of the national income, works out be less than
एक्चुअल। अभी हमने देखा कि जो हमारा रियल नेशनल इनकम जो है वो बढ़ना चाहिए, है ना। रियल नेशनल इनकम अगर बढ़ेगा तो तब जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा। इसमें क्या है, देयर इज़, इसकी कुछ हमने डिफ़िकल्टीज भी देखी। देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन डिफाइनिंग नेशन इन नेशनल इनकम। हर नेशन की जो अलग अलग पॉलिटिकल बाउंड्रीज होती है, बट नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम बाय नेशनल इन फॉरेन कंट्री। फिर उसके बाद हमने एक देखा, नेशनल इनकम ऑलवेज इन मेजर्ड इन मनी, बट देयर आर नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर डिफ़िकल्ट टू असेस इन मॉनेटरी टर्म्स। अभी जो नेशनल इनकम जो है मनी में ही सिर्फ उसको काउंट किया जाता है, उसको नंबर में ही काउंट किया जाता है। और जो है, और बोलना चाहिए, अभी ये सारी चीज़ें जो है, जैसे पेंटिंग एज अ हॉबी हो गई, ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन बाय मदर हो गया, ऑनर्स मैरिज हो गई, और फिर जो है ऑनर्स मैरिज विथ सेक्रेटरी, और ये सारी चीज़ें जो है ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है। फिर एक हमने देखा जो इलीगल एक्टिविटीज से कमाई रहती है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं की जाती है। The greatest difficulty is double counting, which arises from the failure to distinguish between final and intermediate product. There exists a fear of double multiple counting. To solve this problem, only final goods and services take into account, which is not easy task. Now, next is GNP. GNP per capita income. The second indicator relates to an increase in per capita income. Real income of the economy over a long period. Mayer defines economic development as the process whereby the real per capita income of a country increases over a long period of a time. This indicator purports that for economic development, the rate of increase Mayer defines economic development as the process whereby the real per capita income of a country increases over a long period of a time. This indicator purports the economic development. The rate of increase in real income should be higher than the growth rate of population, but difficulties still remain. An increase in per capita income may not raise the real standard of living of the masses. It possible that increase the rate of saving or the government might itself be using up the increased income for military national income. If the increased in income goes to the few rich instead of going to the many poor. अब पर कैपिटा इनकम जो फीकस आमदनी होती है, एक शख्स की आमदनी भी बढ़ना चाहिए। अगर वो बढ़ रही है, अगर आमदनी बढ़ने के साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा ही। फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो है वो है वेलफेयर। वेलफेयर मीन्स के इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज of individuals. There is also tendency to indicate economic development from the point of view of economic welfare. Economic development is regarded as the process whereby there is an increase in the consumption of goods and services of individual. This indicator is also not free from limitation. Consumption depends on the taste and preference of the individual. It is therefore not correct to have the same weight in a preparing the welfare index of individual. अब जो है कंजम्पशन डिपेंड करता है पीपल्स के टेस्ट पर, है ना, वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं ये उन पर डिपेंड करता है। द रियल डिफिकल्टी अराइजेस in the valuation of output. The output may be valued at the market price, whereas economic welfare is measured and increase in a real national output or income. Third, from the welfare point of view, we must also consider not only what is produced but how it's produced. The expansion of real national output might have raised the real cost, pain and sacrifice and social cost in economy. Now next is
सोशल इंडिकेटर। सोशल इंडिकेटर ये जो होता है समाज से जुड़ा हुआ, सोसाइटी से जुड़ा हुआ। Certain economists have tried to indicate in the terms of social indicator. These includes health, food and nutrition, education, illiteracy and skill, employment, condition of work, consumption of basic necessities, transportation, housing, including household facilities, clothing, entertainments, social security, etc. All these indicators emphasis on the quality of development process. अभी सोशल इंडिकेटर से क्या है चीज़ें हमें पता चलती है कि सोशल इंडिकेटर किन चीज़ों को इंक्लूड करता है। हेल्थ, गुड हेल्थ, अच्छी फूड, न्यूट्रिशन, अच्छा एजुकेशन, लिटरेसी एंड स्किल, एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन ऑफ वर्क, कंजम्पशन ऑफ बेसिक नेसेसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग इंक्लूडिंग हाउस होल्ड फैसिलिटीज़, क्लॉथिंग और एंटरटेनमेंट। ये सारी चीज़ें जो ये एक डेवलपमेंट का प्रोसेस है। बट प्रॉब्लम अराइजेस द कंस्ट्रक्टिंग अ कॉमन इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट रिलेटिंग टू दिस सोशल इंडिकेटर। फर्स्ट there is problem economist as to the number and type of item be included in such index. Second, there is the problem of assessing weight to the various items which may depend upon the social, economic and political setup of a country. Third, social indicators are concerned with the current welfare or are not related to the future. इसमें क्या रहता है ना कि फर्स्ट जो है वो हमांगी नहीं रहती है लोगों में, है ना। लोगों के दरमियान जो है हम आहंगी नहीं रहती है। फिर जो है जो सेकंड प्रॉब्लम है वो उन्हें इसकी अहमियत नहीं समझ में आती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेवलपमेंट की अहमियत नहीं समझ में आती है। नाउ आवर नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में। अंडर इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन अ कंट्री और एन इंक्रीज इन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज द मेन क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में जो है जीडीपी का बढ़ना और इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन अ कंट्री, इसका बढ़ना, और इसी के साथ जो है कंट्री की इनकम का बढ़ना, नेशनल इनकम का बढ़ना, ये कहलाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ। फर्स्ट जो होता है वो डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट के बाद अगर कंटिन्यू इनकम बढ़ते जा रही है तो वो इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। According to Kindleberger, economic growth means more output, while economic development implies both more output and changes in the technical and institutional arrangements. Growth may well involve not anymore increase in output per unit of input, है ना। अब ग्रोथ में जो है वो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी आना चाहिए, है ना। यानी पहले डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होने के बाद जो है कंट्री का कंटिन्यूसली इनकम जो है वो बढ़ते जाएगा, है ना। स्टडी चेंज इन इनकम, कंटिन्यूसली जो इनकम बढ़ते जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा। अभी जो है हम देखेंगे इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ इज इंडिकेटेड बाय 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर। फर्स्ट जो है वो है इकोनॉमिक फैक्टर, सेकंड जो है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। अभी हम इकोनॉमिक फैक्टर्स में देखेंगे। फर्स्ट जो है वो है नेचुरल रिसोर्सेज। द प्रिंसिपल फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ इन इकोनॉमी इज नेचुरल रिसोर्सेज। डेवलपमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज सबसे बेस्ट रिसोर्सेज है,
यानी बोलना चाहिए डेवलपमेंट के लिए नेचुरल रिसोर्सेज सबसे बेस्ट रॉ मटेरियल है। द प्रिंसिपल फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी इज अ नेचुरल रिसोर्सेज। लैंड includes the fertility land, it is situation and composition, forest, wealth, minerals, climate, water resources, sea resources, etc. For economic growth, the existence of natural resources in abundance is essential. A country which is deficient in a natural resources will not develop rapidly. यानी बोलना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं ये हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे मिनरल्स, क्लाइमेट, वाटर रिसोर्सेज, सी रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है ना अगर कंट्री में नहीं है तो फिर वो जो कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो रैपिडली नहीं हो पाएगा, है ना। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में डेवलपमेंट है वो रैपिडली नहीं हो पाएगा। इन एलडीसीज नेचुरल रिसोर्सेज आर अनयूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज्ड और मिस यूटिलाइज्ड। This is one of the reasons for their backwardness. The presence of abundant resources is not sufficient for economic growth. What is required their proper utilization. अब देखो, अब नेचुरल रिसोर्सेज का मौजूद रहना ये गारंटी नहीं है इकोनॉमिक ग्रोथ की। इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए, इसका प्रॉपर यूज़ होना चाहिए, है ना। हर चीज़ में जो है इसको जो यूज़ करना चाहिए। This is due to economic backwardness and lack of technological factors. Therefore, natural resources can be developed through improved technology and increase in knowledge. अब नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कैसे होगा? जब तुमको नॉलेज रहेगी कि उसे कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। अगर हमें ये नॉलेज रहेगी कि हमें उसे कहाँ और कैसे यूज़ करना है तो हम नेचुरल रिसोर्सेज को सही से यूटिलाइज कर पाएंगे, है ना। वरना फिर वो चीज़ जो है वो बोलना चाहिए वो अनयूटिलाइज रह जाएगी और मिस यूटिलाइज हो जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कैपिटल अकोमुलेशन। द सेकंड इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर इज द इकोनॉमिक in a growth is a capital accumulation. Capital means the stock of physical reproducible factors of production. When the capital stock increases with the passage of a time, this is called capital accumulation or capital formation. Capital formation is the main key of economic growth. The one hand is reflects effective demand, and on the other hand it's create productive efficiency. Capital formation poses special importance of LDCs. The process of capital formation leads to increase in the national output in a number of ways. According to Lewis, the rate of capital formation in LDCs is a 5% or less, which should be raised to 12 to 15%. Again, according to Kuznets, the incremental capital output ratio has played an important role in a modern economic growth. The incremental capital output ratio refers to the additional amount of capital required to produce an additional unit of output. कैपिटल अकोमुलेशन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। जब कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होता है पैसेज ऑफ अ टाइम से, इट इज़ कॉल्ड कैपिटल अकोमुलेशन और कैपिटल फॉर्मेशन। एलडीसीज के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कैपिटल अकोमुलेशन होना चाहिए, कैपिटल फॉर्मेशन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन relates to the optimum use of factors of production. Organization is complement to a capital and labor and helps in the increasing their productivity. In modern economic growth, the entrepreneur has been performing the task of an organizer. The credit for industrial revolution in England goes to entrepreneurs.
अभी जो है ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है ना, कैपिटल और लेबर इनको हेल्प करता है प्रोडक्टिविटी के लिए, इनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इन मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ द एंटरप्रेन्योर हैज़ परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजर्स, है ना। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अभी जो मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ देखा जाए ना, तो उसमें जो है मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइज़र का। अभी हम यहाँ देखेंगे, द क्रेडिट फॉर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड गोज टू द एंटरप्रेन्योर्स एंड ऑफ द of the economic growth of United States in 19th century and mid 20th century to improvement in the quality of management, but LDCs lack in the entrepreneurial activity. Besides, the required is establishment of financial institutions. The shortage of skilled personnel poses a serious problem in a success of entrepreneurship in underdeveloped countries. It is necessitates the setting up of scientific, technological, managerial, रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अभी जो है एलडीसीज में जो है ना स्किल्ड पर्सनल्स नहीं रहते हैं, है ना, जिसकी वजह से वो एंटरप्रेन्योर्स जैसी जैसी बोलना चाहिए एक पर्सनैलिटी नहीं मिल पाती है उनको, है ना। और इसके लिए जो है यहाँ पर जो है ना शॉर्टेज ऑफ स्किल होता है और एलडीसीज में, तो इनको एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उनके लिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइज़र अरेंज नहीं हो पाते, है ना। अब अपार्ट ऑफ improving economic overheads, capital state should also help in importing machinery and capital equipment, facilitate to finance such as techniques and the supply of raw materials and wider markets will help increasing the supply of entrepreneurs. एंटरप्रेन्योर्स जो ऑर्गेनाइज़र होता है उसका रहना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो हमें बता सकते हैं कि मशीनरी, कैपिटल इक्विपमेंट, फाइनेंस कहाँ करना है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना है प्रोडक्शन के लिए, ये सारी चीज़ें जो है हमें बता सकता है और बहुत ज़रूरी भी है एक ऑर्गेनाइजेशन का होना। फिर जो है टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। चेंज इन टेक्नोलॉजी लीड टू इंक्रीज the productivity of labor, capital and other factors of production। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रहना चाहिए, हर चीज़ में जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए, प्रोडक्शन में जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए। टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ की वजह से क्या होता है ना कि स्पेशलाइज हो जाता है, जो लेबर फोर्सेस हैं वो स्पेशलाइज हो जाती है, स्किल्ड लेबर हमें मिलते हैं, है ना। बट एलडीसीज़ का एक प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जो है वो स्किल्ड लेबर नहीं होते हैं। चेंज इन द टेक्नोलॉजी lead to increase in the productivity of labor, capital, and the other factors of production. Kuznets traces few distinct patterns in the growth of technology. In modern economic growth, they are scientific discovery and invention and improvement and the speed of invention. Kuznets points out that LDCs must import modern technologies to accelerate their productivity capacity. Specialization and division of labor lead to increase in the productivity। कुजनेट्स का क्या कहना है कि जो एलडीसीज हैं वो ज़रूर इंपोर्ट करें, किसे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को इंपोर्ट करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें जो स्पेशलाइजेशन होगा, डिवीजन ऑफ लेबर होगा और वही चीज़ जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी। दे लीड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हायर लेबर प्रोडक्टिविटी and the stock capital, exploitation of new resources by large primary sectors and very small secondary sectors along with the equally small tertiary sectors. Structural changes may begin with the transfer of population from primary to secondary and then tertiary employment, but decline in the
share of agricultural sector in the net national product does not mean a fall in output of agriculture. Rather, agriculture output must increase in absolute terms. अब जो है हर सेक्टर में जो है वो उसका बढ़ना ज़रूरी है टेक्नोलॉजी का। ये जो चीज़ें हैं एलडीसीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। प्राइमरी सेक्टर में भी बढ़ना चाहिए, सेकेंडरी सेक्टर में भी बढ़ना चाहिए, टेरिटरी सेक्टर में भी बढ़ना चाहिए। हर सेक्टर में जो है वो चीज़ का बढ़ना ज़रूरी है। फर्स्ट जो है इब्तदाई सेक्टर में भी बढ़ना चाहिए, सानवी सेक्टर में भी और सलासी सेक्टर में भी इन चीज़ों को बढ़ना चाहिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ना चाहिए। अभी ये चारों हमने देखा इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हमने पढ़ा है नेचुरल रिसोर्सेस, कैपिटल अकोमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। अब जो है हम देखेंगे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स। इसमें वन बाय वन देखना है हमें। फर्स्ट जो है वो देखना है हमें इसमें social factors. Modern economic growth has been influenced by the social and physiological factors. Western culture and education led to reasoning and skepticism. It includes the spirit of adventure, which led to new discoveries and inventions, and consequently to the rise of new mercantile classes. ये भी एक चीज़ है जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। These forces about change in the social attitude, expectations, and values. People cultivated the habit saving and investment, and the undertook risks risks to earn profit. In LDCs, there are such social attitude, values, and institutions are not conducive to economic development. People are fatalist and they are not hard working. सबसे मेन मसला ये होता है ना एलडीसी में, तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो फैटलिस्ट होते हैं, है ना। वो यानी उनका ऐसा मानना है कि पावर्टी जो है वो गिवन बाय गॉड है और वो गॉड के ही ज़रिए हटाई जाएगी। उसके लिए वो लोग कोई हार्ड वर्क नहीं करते हैं। पावर्टी को हटाने के लिए वो लोग कोई भी जो है किस्म का हार्ड वर्क नहीं करते हैं। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर ट्रेडिशनल कस्टम एंड प्लेस हाई वैल्यूज ऑफ कंटेनमेंट एंड पार्टिसिपेशन इन फेस्टिवल्स एंड सेरेमनीज। ये लोग क्या रहते हैं ना एकदम ट्रेडिशनल और हाई वैल्यूज, यानी ये लोग हर चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर रहते हैं अपने कल्चर से, फेस्टिवल से, सेरेमनीज से। Moreover, joint family is the primary social and economic unit. It prevents people from taking independent economic decision. जो joint family है ये भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है सोशल फैक्टर को, यानी फिर जो है इसमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। अब इसका जो फर्स्ट वो है कि जॉइंट फैमिली जो है इसमें आज़ादी नहीं होती है। एक शख्स को जो है बोलना चाहिए आज़ादी नहीं मिल पाती है वो खुलकर जी सके। डिसीज़न लेने में, इकोनॉमिक डिसीज़न लेने में उसे आज़ादी नहीं मिलती है। इन सच सोसाइटीज़ रिलेशंस आर पर्सनल और people are influenced by caste, color, or creed at the social level. These social attitudes, values, and institutions should be changed or modified for economic development to take place. अब जैसे जो है कास्ट, कलर, ये सारी चीज़ें रहेगी, रिलीजन, ये सारी चीज़ों में अगर लोग उलझे रहेंगे तो फिर वो जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। Now, second one is human factor. Human factors have been an important factor in modern economic growth. Economic growth does not depend on the size of human resources but their efficiency. इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ये डिपेंड नहीं करता है कि ह्यूमन की साइज़ कितनी बड़ी है ना। ये साइज़ पर डिपेंड नहीं करता, ये उनकी इफ़िशियंसी पर डिपेंड करता है। But the rapidly increasing population is great hindrance to the economic development of LDCs. With their low per capita income and low rate of capital formation, it becomes difficult for them
to support the increasing population, and when output increases due to improved technology and capital formation, it is solved up by increase in numbers. As a result, there is no improvement in a real growth rate of economy. अब जो है अभी जो है एक मसला खड़ा हो रहा है कि बढ़ती जो एलडीसीज में आबादी बढ़ रही है ना, यानी ह्यूमन साइज तो बढ़ रही है, बट उसकी इफ़िशियंसी क्या है, वो कितना यूज़ हो रहे है ना, ये सारी चीज़ें हैं। अब जो है a part of use human resources can be made for economic development in following ways. First, control over population. अभी जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, इसको हम अगर डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए यूज़ करें तो इसके भी कुछ रास्ते हैं। जैसे फर्स्ट जो है वो कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर कर हम बोलना चाहिए वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकते हैं। सेकंड, चेंज इन द आउटलुक ऑफ लेबर फोर्सेस ऑफ एजुकेशन। अब जैसे जो अनस्किल्ड लेबर है हम उन्हें स्किल्ड लेबर कर सकते हैं। इट इज़ द एजुकेटेड एंड ट्रेंड लेबर फोर्सेस विथ हाई प्रोडक्टिव इफिशियंसी दैट लीड्स टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और फिर जो है लेबर की इफ़िशियंसी जो है उसे हम बढ़ाएंगे, लीड्स करेंगे, है ना, प्रोडक्टिव इफ़िशियंसी को हाई करेंगे। इस तरीके से जो है हम ह्यूमन फैक्टर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ थर्ड इज़ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर। Political and administrative factor also helped in modern economic growth. The economic growth of Britain, Germany, and the United States, Japan, France has been due to their political stability and strong administration since 19th century. देखो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे ब्रिटेन हो गया, जर्मनी हो गया, यूनाइटेड स्टेट हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, इनका जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन है इनके पास, है ना, पीस प्रोटेक्शन एंड स्टेबिलिटी हैव इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन डेवलप्ड कंट्रीज़। अब जो है पीस, अमन और प्रोटेक्शन जो है, ये चीज़ जो है ना, ये डेवलपमेंट को बढ़ाती है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में मसाइल ये नहीं होते हैं, कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजन, इन पर मसाइल नहीं होते, ये मसाइल नहीं होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ में। वहाँ का पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है इन मसाइल से दूर सोचते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचते हैं, वो डेवलपमेंट कैसे आएगा इसके बारे में सोचते हैं, वो प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज़ होगी इस चीज़ के बारे में सोचते हैं, है ना। और यही सारी चीज़ें जो है वो बोलना चाहिए ग्रोथ लेकर आती है ना, यही सारी चीज़ें जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ लाती है। आज यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट लेसन जो है वो ख़त्म होता है। थैंक